Hello students, how are you? Hope you all are very fine. Children, we are studying about the chapter 2 of history from trade to territory. In the previous video, we had studied about the East India Company arrival, and today we will study about the East India Company being trade in Bengal. So let's start. The first English factory was set up on the banks of the river Hooghly in 1651. This was the base from which the company's traders known at the time as factors operated. The factory had a warehouse where goods for export were stored, and it had offices where company officials sat. As trade expanded, the company persuaded merchants and traders to come and settle near the factory. जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बंगाल में अपना इस्टेब्लिशमेंट हुगली रिवर के किनारे उन्होंने किया 1651 में, और उसके बाद उन्होंने अपने व्यापार को और स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू किया। इसके लिए उन्होंने औरंगज़ेब से, जो कि उस वक्त का राजा था, फरमान जारी करवाया कि उन्हें टैक्स फ्री करवा दिया जाए। अब जो ट्रेड था, व्यापार था, वो किस तरह से धीरे धीरे बैटल्स तक पहुंच गया वो देखिए। थ्रू द अर्ली 18th century द कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड. After the death of Aurangzeb, the Bengal Nawab asserted their power and autonomy, as other regional powers were doing at that time. Murshid Qali Khan was followed by Ali Vardi Khan and then Sirajuddaulah as the Nawab of Bengal. Each one of them was a strong ruler. They refused to grant the company concessions, demanded large tributes for the company's right to trade, denied it any right to mint coins, and stopped it from extending its fortifications, accusing the company of deceit. They claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amounts of revenue and undermining the authority of the Nawab. It was refusing to pay taxes, writing disrespectful letters, and typing to humiliate the Nawab and his officials. The company, on its part, declared that the unjust demands of the local officials were ruining the trade of the company, and trade could flourish only if the duties were removed. It was also convinced that to expand trade, it had to enlarge its settlements, buy up villages, and rebuild its forts. The conflicts led to confrontation and finally culminated in the फेमस बैटल ऑफ प्लासी. अब देखिए, जो औरंगज़ेब था, उन्हें ट्रेड फ्री कर दिया था, लेकिन वो बंगाल में पूरी तरह से व्यापार को फ्री चाहते थे, और जो वहाँ के नवाब थे उन्होंने इसको रिफ्यूज़ कर दिया। औरंगज़ेब की जब डेथ हो गई उसके बाद तो नवाब ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, और औरंगज़ेब का फरमान था उसे समाप्त कर दिया कि कंपनी को फ्री ट्रेड करने दिया जाए। अब मुर्शीद कली खान जो था, अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे, उन्होंने, और वो स्ट्रॉन्ग रूलर भी थे, तो उन्होंने कंपनी को किसी भी तरह का कंसेशन देने के लिए मना कर दिया, और बल्कि उन्होंने सिर्फ कंसेशन देने के लिए ही मना नहीं कर दिया, बल्कि ये भी कह दिया कि वो अपनी पावर यहाँ नहीं बढ़ा सकते, और उन्हें जो भी वो ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे, तो उन्हें उसका जो है वो टैक्स देना होगा। तो इस तरह से दोनों के बीच में, जो नवाब थे उनके बीच में और जो कंपनी थी उनके बीच में, इस तरह से डिस्प्यूट्स आने लगे, दोनों के बीच में डिफरेंसेस आने लगे। तो कंपनी जो थी अपने जो डिमांड्स थी उनको मनवाने की भरसक कोशिश कर रही थी, और ये सारी जो इन लोगों के डिस्प्यूट्स थे वो बाद में बंगाल के नवाब और कंपनी, इन दोनों के बीच में इतने डिस्प्यूट्स फिर हो गए कि वो बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध के रूप में निकल कर आए उस वक्त, क्योंकि कंपनी जो थी वो भी काफ़ी पावरफुल हो चुकी थी। द बैटल ऑफ प्लासी.
When Ali Vardi Khan died in 1756, Sirajuddaulah became the Nawab of Bengal. The company was worried about his power and keen on a puppet ruler who would willingly give trade concession and other privileges. So it tried, though without success, to help one of Sirajuddaulah rivals become the Nawab. And infuriated, Sirajuddaulah asked the company to stop meddling in the political affairs of his dominion, stop fortification and pay the revenues. After negotiations failed, the Nawab marched with 30,000 soldiers to the English factory at Qasim Bazar, captured the company officials, locked the warehouse, disarmed all Englishmen and blockaded English ships. Then he marched to Calcutta to establish control over the company's fort there. On hearing the news of the fall of Calcutta, company officials in Madras sent forces under the command of Robert Clive, reinforced by naval fleets. Prolonged negotiations with the Nawab followed. Finally, in 1757, Robert Clive led the company's army against Sirajuddaulah at Plassey. One of the main reasons for the defeat of the Nawab was that the forces led by Mir Jafar, one of the Sirajuddaulah commander, never fought the battle. Clive had managed to secure his support by promising to make him Nawab after crushing Sirajuddaulah. The Battle of Plassey became famous because it was the first major victory the company won in India. तो चिल्ड्रन, अब जो नवाब था, जो प्लासी का युद्ध हुआ, उसमें क्या हुआ, जो अली वर्दी खां जो था वो पहले मेन नवाब था वहाँ का 1756 में. उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल का पूरी तरह से जो था पावर उसके हाथ में आ गई, वो नवाब बन गया. तो कंपनी जो थी वो बहुत चिंतित थी, क्योंकि वह उसके हाथों में एक ऐसा पपेट नहीं था कि वो उनकी बात माने. तो वो कोशिश कर रही थी कि उन्हें एक ऐसा पपेट मिल जाए जिससे वो अपनी बातें मनवा चुके, क्योंकि सिराजुद्दौला था वो तो नवाब बन चुका था बंगाल का, और उसके पहले से ही वो कंपनी के विरोध में था. वो कंपनी को जितने भी फैसिलिटीज़ मिल रही थी उनको उन्होंने रोक दिया. जो वो पॉलिटिकल चीज़ों में इंटरफियर करते थे उसको उन्होंने स्टॉप कर दिया. उन्होंने जो पावर बढ़ा रहे थे उसको स्टॉप कर दिया और रेवेन्यू देने के लिए उन्होंने बोल दिया. तो कंपनी जो थी वो इन सब चीज़ों पर उसने रोक लगा दी. तो जब कंपनी के लोगों ने इस चीज़ के लिए मना किया तो फिर नवाब सिराजुद्दौला ने अपने 30,000 सोल्जर्स के साथ कासिम बाज़ार में इंग्लिश फैक्ट्री पर वहाँ पर धावा बोल दिया और कंपनी के जो ऑफिसर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया और बहुत सारे इंग्लिश शिप्स थे उनको ब्लॉक कर दिया. इंग्लिश मैन जो थे उनके हथियार छीन लिए और फिर आगे वो बढ़ा कैलकाटा के जो उन्होंने किला बना रखा था उस पर हमला करने के लिए. जब कैलकाटा की न्यूज़ ये मद्रास के ऑफिसर्स ने सुनी तो उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव को अपनी नावल फ्लीट्स के साथ वहाँ पर उससे नवाब से लड़ाई करने के लिए भेजा. फिर 1957 में रॉबर्ट क्लाइव जो था वह अपनी कंपनी की आर्मी के साथ सिराजुद्दौला के साथ प्लासी के मैदान में उनका युद्ध हुआ और इसमें नवाब की हार हुई. उसका मेन कारण था मीर जाफ़र. मीर जाफ़र जो था उस सिराजुद्दौला का कमांडर था, वह लड़ाई में उसने युद्ध में अच्छे से लड़ाई नहीं की और उस जो क्लाइव था उसने उसको ख़रीद लिया और प्रॉमिस किया कि हम सिराजुद्दौला को मारने के बाद तुमको बंगाल का नवाब बना देंगे. तो उसने उसको धोखा दे दिया और इसलिए प्लासी के मैदान में जो सिराजुद्दौला था वह कंपनी से हार गया. और यह प्लासी का जो बैटल ऑफ प्लासी है ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि यह भारत में कंपनी की पहली जीत का गवाह बनी. इसके बाद कंपनी धीरे धीरे हमारे देश पर राज करती चली गई.